नवी मुंबईत रंगला डॉक्टर गौरव पुरस्कार सोहळा. ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ठरल्या सोहळ्याचे प्रमुख आकर्षण. न्यूज हेल्थ केअर अवॉर्ड्स 2024 सोहळा, यात निष्णात डॉक्टरांचा गौरव, मासिक प्रकाशन व वैद्यकीय परिषद असा भव्य दिव्य दिमागदार सोहळा तुंगा हॉटेल वाशी येथे संपन्न झाला. आरोग्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदान देणारे डॉक्टर्स, नवनवीन संशोधन करणाऱ्या संस्था, प्रतिष्ठित डॉक्टर यांना आशियाचे सर्वोत्तम हेल्थ केअर अवॉर्ड, डॉक्टर रत्न, आरोग्य विभूषण, राष्ट्रीय मेडिकल अवॉर्ड, फार्मारत्न अशा विविध गुणवंतांचा सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन अभिनेत्री पूनम ढिल्लों यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. या सोहळ्याला डॉक्टर ओम खरबंदा, डॉक्टर विभा हेगडे, डॉक्टर तुषार सूर्यवंशी, डॉक्टर फारुख शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सोहळ्याचे प्रत्यक्षण न्यूज सायन्स प्रेक्षकांसाठी संपादक आणि वळे यांनी चित्रित केले आहे. It's wonderful to be here, and I think, which mic am I using? This one. It's actually a real privilege to be here with the HealthView Healthcare Awards and Conference, surrounded by this wonderful crowd of doctors, healthcare professionals, and all the other dignitaries and guests who are here. Well, I was told that today's topic is rising disease, changing climate, a unified call for healthcare action. Well, we are all facing all these environmental issues on daily basis, and we are all very well aware of how urgent this need and awareness is. I have lots of friends staying in Chennai, and we have in fact a group of the stars of the South from the 80s, and the last 2-3 days have only been about the disastrous rains and the flooding and the difficulties and problems they are facing due to this acute rainfall, which is of course a regular thing which is happening in Chennai. And we are not talking about only people living in slums. We are talking here about people living in beautiful bungalows, high-rise apartments. They are all facing it. So climate change does not discriminate. There's no difference between the elite, the poor, the rich, any of it. We all are going to face the brunt of it if we are not careful about it. And I think Delhi, I just came last night from Delhi. It's a national topic, pollution in Delhi, but we are all facing it. Even in Mumbai we are facing. We talk about the health issues which are happening. You know, some things which we have never heard about was becoming more and more prevalent. Recently, 2 of my friends were diagnosed with lung cancer, and she says because she's living where all the work is going on and all the dust and the cement and all the particles are happening. So we are all very, very aware of what is happening in our environment. And why we are talking about it today? I think because each of us has a responsibility. As a citizen, me as a person whose voice I try to spread the message of being environmentally conscious. And you all as doctors and healthcare professionals, for you, each of your patient, I think you are a person who's broadcasting health to each of them, looking after them. So spreading the message through each one, spread one. And I think if this message passes about, some time ago we were all very conscious of the plastic which was causing major problems in Mumbai, especially because we face a huge amount of exponential amount of rain every year. And the flooding which has been happening here is due to sheer carelessness, I would say, because remember the deluge which happened a few years back, we all became so aware of it. But 2-3 days later, I was crossing near my house, I saw a huge amount of plastic and chai ka cups being thrown just near the drain pipes. Obviously they're going to block those drain pipes, and the next rain which comes is again going to flood the streets. So flooding is not just an inconvenience, it's causing malaria, it's causing dengue, it's causing chikungunya. We are all facing it. Things which were earlier a rare one-off thing, today is like whole of JVPD is having chikungunya happening. It's like an epidemic. So it's really something which we all are facing. So as citizens, as educated people, I think it is our duty to pass that message. Well, as I think the note which I had made here, which I've already said to you, what you all can do is by educating patients about the health risks of climate change, you empower the communities.
by advocating for sustainable practices in your hospitals and clinics. You set example for others to follow. And me being a media person, a person with a voice which sometimes does get hurt by media, I would like to spread that message. And I must really congratulate Mr. Shahid for putting together this amazing conference. And the proverb, when we heal the earth, we heal ourselves, it is really more meaningful today than ever before. So let's look after this earth which we were being given, we've been blessed with, and let's not say it's somebody else's responsibility. Each of us has a responsibility. I thank you all again for inviting me here. And I think this conference is for us to come together, not as individuals, but as a collective force to change. Today, your discussions and collaborations will set the stage for solutions. Thank you, all of you, all the doctors, researchers, NGOs who are here today. Thank you for your dedication, and let's do this together. Thank you for inviting me. सडनली ओवरनाइट डॉक्टर्स नहीं बनते, बहुत साल उनको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब लिटरली 8 to 10 years उनकी मेहनत होती है, फिर उनको एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तभी वो ट्रेन होते हैं। सो हमें पहले तो सबसे ज़्यादा उनको इज्जत देनी पड़ेगी फॉर देयर कमिटमेंट, फॉर देयर हार्ड वर्क एंड ऑल द एफर्ट्स दे मेक। एंड जो डॉक्टर्स हैं, दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि हेल्थ के बगैर हमारी कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। हम कितना भी लाइफ में अचीव करें, अगर सेहत ठीक नहीं हो, तबीयत अच्छी ना हो, तो नथिंग मैटर्स। सो डॉक्टर्स, वी आर ग्रेटफुल टू देम फॉर ऑल दी वर्क दे पुट इन टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ अस। सो आज उनको अवार्ड किया जा रहा है, उनको आपसे रिकग्नाइज किया जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज जो भी मेहनत करता है उसको जब अप्रिशिएट किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, इट मीन्स अ लॉट एंड इट्स आवर वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटफुलनेस। पूनम जी, एक सक्सेसफुल एक्टर और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी राय में दोनों में क्या फ़र्क है? अब आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं जैसे 1 मिनट मीडिया प्लीज़ आप अपने फ़ोन से साइलेंट कर सकते हैं। नहीं, पर्सनल नहीं है। नहीं, बट ये कोई कंपैरिजन नहीं है, हर चीज़ में मेहनत होती है। अगर आप बिजनेसमैन भी बनना चाहें, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर्स को इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जो एजुकेशन उनकी है, जो उसकी स्टडीज़ है, बहुत ही मुश्किल है। और बाकी काफ़ी हमारी प्रोफेशन इंक्लूडेड, आप 8th पास भी हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं। आप डॉक्टर बहुत एकेडमिक पढ़ाई किए बगैर नहीं बन सकते हैं। और वो जब आपकी डिग्री मिल जाती है तब आपका काम ख़त्म नहीं होता, आपका ज़िंदगी भर चलता रहता है योर एफर्ट्स, योर एंडेवर, योर कमिटमेंट। और रात रात भर उनको जागना भी पड़ता है, लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। समटाइम दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर ऑल्सो, जैसे कोविड के टाइम हमने देखा डॉक्टर्स ने कितने अपने आप को डेंजर में डाल के लोगों की सेवा की। तो वी एटर्नली ग्रेटफुल टू द डॉक्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्ट एडिशन, हिंदी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ। हेल्थ व्यूज़ एक पोर्टल है, healthviewsonline.com, और ये पहला साल है जिसने जब हमने ये हेल्थ केयर अवार्ड्स चालू किया है। इसमें कई सारे कैटेगरी थे, एशियाज़ बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड, डॉक्टर रत्ना अवार्ड, आरोग्य विभूषण सम्मान, नेशनल मेडिकल अवार्ड और फार्मा रत्ना श्री सम्मान। ये हमारा जो पोर्टल है healthviewsonline.com, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें कवर किया जाते हैं, जैसे डॉक्टर स्टोरीज, सर्वाइवल स्टोरीज़, और रेगुलरली यहाँ पे आर्टिकल दिया जाता है। ये इस इवेंट में हमने अपना हेल्थ व्यूज़ ऑनलाइन का मैगजीन लॉन्च किया है, जो हर महीने आएगा। इट्स अ मंथली एडिशन वेयर वी कवर डॉक्टर स्टोरीज, देयर इंस्पायरिंग स्टोरीज, सर्वाइवल स्टोरीज अलॉन्ग विथ आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? So we do this. मैम, ये डॉक्टर्स कौन से कैटेगरी में, कहाँ से अपने डॉक्टर्स पूरे मुंबई कौन से लोकेशन से? डॉक्टर्स हियर आर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ये एक और NRI डॉक्टर्स भी हैं, जो 2 डॉक्टर्स नहीं आ पाए, वो एक दुबई से आने वाले थे और कनाडा से आने वाले थे। तो डॉक्टर्स अक्रॉस द नूक्स एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया सभी से आए थे। यहाँ पे डॉक्टर्स का काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो एशियाज़ बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड उन्हें दिया गया है। डॉक्टर रत्ना में
ये सारे एलोपैथी डॉक्टर्स थे। जैसे आपने देखा कि तेलंगाना के 5 डॉक्टर्स थे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स थे। ऐसे आरोग्य विभूषण सम्मान में हमने आयुष डॉक्टर्स को सम्मानित किया है और आयुष में उसके अलावा हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपी लोग को भी प्रिफर किया है। नॅशनल मेडिकल अवॉर्ड हा जो आम्हाला आज प्रदान केला गेला तो हेल्थ व्ह्यू ह्या संस्थेकडून अवॉर्ड देण्यात आला आणि ही संस्था खूपच सुंदर पद्धतीनं समाजामध्ये काम करते आहे आणि बऱ्याच डॉक्टरांना त्यांनी आज ॲप्रिशिएट केलं, त्यांच्या कामाबद्दल ॲप्रिशिएट केलं आणि यामध्ये आम्हाला एक बेस्ट एज्युकेशन कन्सल्टंट म्हणून सुद्धा त्यांनी अवॉर्ड दिला की आम्ही गेली 25 वर्ष मार्केटमध्ये जे काही आत्तापर्यंत 5,000पेक्षा जास्त डॉक्टर बनवण्यामध्ये आमच्या संस्थेनं जे कॉन्ट्रीब्यूट केलं त्याबद्दल या संस्थेनं आम्हाला सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी या संस्थेचा आभारी आहे. सर काय सांगाल, आज तुम्हाला देखील इथे अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि एक सिनियर डॉक्टर आहात, काय सांगाल आणि काय तुमच्या भावना आहेत आजच्या? पहिली गोष्ट मला आनंद आहे की अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन ॲक्युपंक्चर अभियंत्रालय यांनी अभिमानास्पद एशियन बेस्ट अवॉर्ड दिला आहे मला. आणि ॲक्युपंक्चर सांगायचं म्हटलं तर जगातला ऑलमोस्ट सगळ्या रोगावरती जे उपचार यशस्वी करू शकतो आम्ही. आणि आज महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही 2 थेरपी डेव्हलप केल्या आहेत. एक लाईफलाईन प्राजक्ता म्हणून केलेली आहे जी संपूर्ण शरीरावरती डाव्या हातावरती काम करतं. कुठल्याही रोगावरती 10 सेकंदामध्ये आराम देऊ शकतो आम्ही. दुसरी गोष्ट एक प्रिकलिंग गायनॅक अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टम डिसऑर्डरमध्ये फक्त फोटो डेव्हलप केली आहे, त्यावर कुठल्या रोगावर ट्रीटमेंट करता येते आणि यश त्याचा 100% आणि 101% यश त्याच्यामध्ये आहे. सर ही प्रत्येक रोगावरती आणि प्रत्येक थेरपी जवळपास सगळ्या रोगावर 101% उपचार चांगला करू शकतो. सर, अशा अवॉर्ड फंक्शननी किती प्रोत्साहन मिळणार आहे डॉक्टरांना? मला वाटतं ॲक्युप्रेशरला थोडंसं मागे टाकले लोकांनी, पण जर का लक्ष घातलं तर यशस्वी ते पाहिलं तर 101% यशस्वी थेरपी मी तुम्हाला खात्री देऊ शकतो. कुठल्या रोगाला आम्ही सांगा फक्त मला त्रास येते काय आहे, मला कमी करत 10 सेकंद 10-15 सेकंद लागतात लोकांना, एवढी खात्री मला या क्षेत्राबद्दल आहे. अवॉर्ड मिला है एक्चुअली अवॉर्ड के तो मैंने जिन्होंने डॉक्टर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया और अच्छे से एप्रिशिएशन है. और मैं एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये हेल्थ अवार्ड है. बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स और डॉक्टर्स से मिलके और सभी लोगों ने अपने बारे में बताया. अच्छा, एक हेल्थ को लेके आगे को सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट है. अभी जो हॉट टॉपिक है वो हेल्थ को लेके ही है, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है. तो इसके लिए बेस्ट है कि हेल्थ के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचें और लोगों को अवेयर करें. तो मुझे तो ये अवार्ड फंक्शन भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अप्रिशिएटेड है कि डॉक्टर्स को इन्होंने बुला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया सबसे. और बेस्ट, आगे भी मैं आना चाहूँगी.